वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ अनलीज्ड मिस क्रिकेट चैनल। इससे बेहतर इस चैनल की शुरुआत क्या हो सकती है? द आइकॉनिक ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम इन कोलकाता। आज इस चैनल का पहला वीडियो डलेगा और ये पहली शुरुआत भी है, और वो भी एक बहुत ही आइकॉनिक जगह से। None other but one of the most iconic and beautiful cricket stadiums in India, Eden Gardens, Kolkata. This is not just a cricket stadium, it's a heritage. It's not just a cricket stadium, it's a place where dreams meet the reality. Yes, the person you see right now on your screen, his dreams did take a flight. He did got an opportunity to play in this iconic cricket stadium. He did represent Bengal Cricket Association in age group cricket tournaments. But then he disappeared. What went wrong? He is one of the best cricketers I have played match alongside. Right now he hustles far away from this cricketing glamour. He hustles through the corporate world of Bengaluru. और आज हम इस बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के गुमनाम सितारे के बारे में जानेंगे. This is the story of ex-cricketer of Bengal, Debanjanta. What better start to this channel than having you on this seat? So welcome Debanjanda to this first podcast, or the first show that I am having around cricket. So firstly, if you can please, I know you very well, I have seen your game, मैंने आपका क्रिकेट देखा है. Firstly, if you could please introduce yourself a bit, कि क्या है, क्या चल रहा है आपका? So I would not obviously introduce myself as a cricketer anymore, क्योंकि that's a past. So yes, I work in the art of real estate. I'm based in Bangalore. Yes, I love the sports and वही प्यार मोहब्बत है, इसीलिए कभी कभार ऐसे जगह पे मैं वापस आ जाता हूँ, क्योंकि यहीं से शायद मेरी शुरुआत हुई थी. अब ये कलकत्ता है, पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, मैं रहता नहीं हूँ. तो कभी अगर मौका मिलता है और इफ इट्स अ संडे, आई नो दैट देयर आर मैचेस गोइंग ऑन, so it makes it easier for me to come and meet the old chaps with whom I have played. अभी कोई जैसे आज while we were coming, you also met a couple of people whom you saw that they have become coaches. They have, some of them are still playing, some are doing umpiring, right? So अब यही है, the transition has that is supposed to happen with the time and with that of age has happened with us as well. So आप बैंगलोर में अभी क्या कर रहे हो? What exactly are you doing? How long since in Bangalore? So Bangalore, I have been there in like for last 6 years. I have been into real estate, right? मैं एक कंपनी में वहाँ पे जॉब करता हूँ एज अ मैनेजर, और हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं. तो आई एम श्योर रियल एस्टेट मतलब सबको ही समझता है कि क्या होता है. तो घर वगैरह जो होता है, दैट वी आर इनटू दैट. तो वही है, बैंगलोर इज ऑल अबाउट वर्क. ठीक है. सो आई एम श्योर we all know that most of the people from the eastern part of India is moving towards Bangalore, Hyderabad, Pune for job, Why because does he want to be here only? I believe he too wants to. Wait, come here. हाय हाय भाई, तू यहाँ आ जा या फिर चले जा. So how does it feels to be back to this city of joy, Kolkata? I See, mean, obviously, it is always good to be back to your roots, right? You cannot have, because I was born out here, I grew up out here. So every inches of this area, and specifically the place where we're sitting, I have played in all the grounds out here, right? And for a long period of time. So it is very obvious that I know everything out here, right? Starting from the food, starting from everything. When I go to work, obviously that is a place I have to be because I get paid. But if you ask me where love resides, it's always Calcutta. It can never be. मतलब अगर खाना खाना है तो कलकत्ता हो, मोहब्बत करना है तो कलकत्ता हो, क्रिकेट खेलना है तो कलकत्ता हो, ट्राम या फिर ओल्ड रस्टिक चार्म ऑफ इंडिया अगर देखना है तो कलकत्ता हो. being into this ground, beautiful grounds with like this sun coming out, winter. How, what does it remind you? आपको क्या याद दिलाती है ये winters, ये sun, ये घास जो एकदम सूखी पड़ जाती है, वो मिट्टी जो है. That up, I mean, being a cricketer, I can relate definitely. But for the क्या normal audience, याद दिलाती तो नहीं yes. पता, बट क्या एहसास कराती है ये पता है. एहसास यही कराती है कि आई शुड हैव बीन मोर डेडिकेटेड टू द गेम. तो शायद आई माइट हैव कंटिन्यूड द क्रिकेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट. तो वो एक चीज़ है. और ऐसे में मतलब ऐसे सुनहरी धूप जब आती है और सर्दी का मौसम है, राइट. हाँ, दोपहर को 12 बजे शायद धूप थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट
ये सुबह 10 साढ़े 10 बजे it's a good feeling to that you have, yes. right? सर्दी, Which साथ में सर्दी का जो जो विटामिन डी की जरूरत है ना, वो भी मिल जाता है मुफ्त में. which is your favorite ground out here in Calcutta, except the iconic Eden Gardens, So like the local grounds again, outside? I would say, if you ask me in terms of the kind of cricket I played, Any terms I'm saying. or Calcutta the में local ground. performance wise, I would say we went to Rangers ground, right? Rangers is one of my favorite ground, right? I had some runs scored out there, right? Then I had High Court ground. High Court ground, I took 7 wickets in one T20 in 4 overs, right? Which with two maiden, if I'm not wrong, and 6-7 runs given, and it was a double hat trick, Wow. right? So yeah, so it was a double hat trick. So I used to do leg spin. So that was, I'm not very sure. I don't remember it because it's almost 10, 11 years that I've last played. So that was the last year I played cricket. So that was one ground. Because majorly out the grounds out here are very small, right? So being a leg spin bowler and a batsman, I used to love Kalighat ground, right? Kalighat ground is a big ground. So I had that opportunity where I can give flight to the ball. If I'm bowling in this smaller ground, even a edge would take you to a six, right? So that was always a challenge. But in grounds like town or in that of Wari, that was never a challenge, right? We got that scope to flight the ball. But yes, love wise, I would say I always preferred playing in that of Rangers ground or the customs ground. I love that of the High Court ground. That was another one. I like Jadavpur ground, right? Yes, That that is is all. beautiful. Yes, That I've is been there. also. So that is also a good ground that I wanted to be, right? And yeah, obviously we had played some matches in Eden Gardens as well. So that is obviously that's a very different feeling when you play out there, right? So Absolutely. So Devanjan, in terms of professional cricket or in terms of cricket, at what age आपका क्रिकेट जर्नी जो है कौन से एज पे स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ? ये क्रिकेट के साइड जो हर किसी की एक स्टोरी होती है, राइट, कि मुझे यहाँ से दी मैंने देखा और मुझे क्रिकेट खेलने का मन हुआ एंड यहाँ से मैंने शुरू किया. तो ये आपका कहाँ से शुरू होता है ये चीज़? देखो, ऐसा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब अगर मैं बोलूँ कि इंस्पिरेशन कुछ मेरा था, शायद नहीं. मेरे पापा यूज्ड टू प्ले क्रिकेट. My father was a sportsman, right? He has played some bit of cricket. So I guess it came out from him that he wanted me to become a sportsman, right? So I started my first thing that as a sport I started. I was when I was just 4.5 years old. I started swimming, right? So by the time I was like 6.5, I went to that of a coaching camp, right? So my first coaching camp was under somebody. I did for just 1.5 month out there. Kolanda is his name, right? So it was in the place where I used to reside. It's in Uttarpada. So Kolanda back that time had with that of Tonmoida. So they were two friends who started the camp, so Tonmoida and Kolanda. Used to happen in Uttarpada government school. There used to be a coaching center. So as I used to have morning schools, so the evening time it happened to be the coaching. So that was the first time I started. But unfortunately, What time it would be? कौन सा साल होगा ये? so I am 37 now. So and actual में, right? So So those who do not know why he said actual में, तो क्रिकेटर्स के दो एज होते हैं. इफ़ यू गो टू अ नहीं, ये तेरे लिए होता है, सबके हर किसी का नहीं होता है. this is real fact that nobody speaks about. When you go to a cricketer like a friend, if he's your friend, आपका अच्छा फ्रेंड है, आप उनसे पूछते हो भाई तेरी एज क्या है, लंबी दोस्ती हो गई है, तो बोलेगा पूछेगा आपसे कि कौन सा एज, क्रिकेट वाला या रियल वाला. सो दैट्स वेयर ही इट केम फ्रॉम कि इट्स अ रियल एज. तो मेरा एक ही एज है 37, राइट? तो अब 6 साल का मतलब 31 साल पुरानी बातें तुम पूछ रहे हो. So that is very difficult to tell. Of the 31 years, if I consider from now, it should have been in what 94, 90, 93, 94 should be the time. 94, yeah, 94 should be the time when I started. I first held a bat, right? सो यू टोल्ड मी अबाउट अपने डैड के बारे में. आपने बताया कि उन्होंने भी काफ़ी क्रिकेट खेला है. ही ऑल्सो हैव लॉट ऑफ He नॉलेज has अबाउट. played cricket, he has played football, he has played hockey. तो उनके टाइम पे स्पोर्ट्स बहुत अलग होते थे, हमारे टाइम पे स्पोर्ट्स बहुत अलग होते थे. सो व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, मैं क्या समझना चाहता था आपसे कि आई हैव माई सेल्फ, मैं जब आपके साथ बैंगलोर में खेलने गया था,
he would come to the ground at current age as well. He would be 60 plus by now, I'm sure. 70 plus. 70 plus, yes. वो आए थे आपको, एंड यू आर 37 नाउ, जस्ट द वे यू सेड. और वो आज भी आपने एक गंदा शॉट खेला, वो आपको डांट रहे थे कि वाई डिड यू प्ले दैट शॉट, कि आप ये खेल सकते हो. तो व्हाट इज दैट स्टोरी, टेल मी, टेक मी थ्रू दैट. So again, as आई मीन टू because- हैव अ father like that is something that not everybody is lucky enough to get that No, kind again, of see, guidance the thing again. is that, so that is again, there are pros and cons to it. Now, when you have a father who has played cricket, right, and or maybe a sport, right, and he wants his son to be a sportsman because he could not become one, so there is a pressure that comes in. That is one. Second, I think ये कोई बात नहीं करता है इस बारे में, right? nahi, I'm sure But it there is there. right, because I always feel that if my dad would come to the ground, I would have more pressure because if I play a wrong shot, now he is old, he would not scream. But back when I was younger, obviously when he was much younger, if I would have played a bad shot, the excitement always comes out for a sportsman, right? So, so he might have reacted. So if he reacts, so obviously if I see that, I would get conscious, right? So and it is something that lesson is not learned by my mistake, but by the fear that my papa can मेरे को डांट सकता है, Agreed. Yes. right? अगर मेरी सीख जो है वो डर से हो रही है तो वो गलत है. अगर मैं गलती करके खुद समझ रहा हूँ कि मैंने गलती किया है तो ही मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा. अगर मैंने एक शॉट गलत मार दिया और मेरे पापा ने मेरे चिल्लाया, किसी ने मेरे पे चिल्लाया, तो वहां से मेरा डर की शुरुआत होगी कि अगर मैं करूंगा तो पापा डांटेंगे, मारेंगे. बट वही अगर मैं एक शॉट मारता हूँ, कोई मुझे बोलता नहीं है इन दैट ऑफ द गेम, मे बी द कोच सेज और somebody says it, right? बट देन अगेन इफ यू आर प्लेइंग, इफ यू आल्सो अंडरस्टैंड, मतलब थोड़ा बहुत अगर क्रिकेट का समझ किसी को है तो वो खुद भी समझेगा अगर गलत शॉट मारा है, सिलेक्शन शॉट गलत है उसका, तो अगर वो खुद से उसको रेक्टिफाई करेगा ना तो वो जल्दी रेक्टिफाई होगा, वो गलती नहीं करेगा. बट डर से वो शायद दूसरा तरफ हो सकता है, मतलब दैट्स माय पर्सपेक्टिव, मे बी इट कैन बी Agreed. डिफरेंट. नहीं, it's true. मतलब क्या होता है ना, आज वी सी दैट, तो हमारे टाइम पे इट वाज, मतलब आई हैव नेवर सीन माय फादर कैरी माय किड बैग, राइट, कितनी भी भारी हो. आई हैव सीन के बच्चे आ रहे हैं कोचिंग कैंप पे, पापा बैग लेके आ रहे हैं, मम्मी बैग लेके आ रहे हैं, राइट. तो थिंग इज दैट माय क्वेश्चन टू देम इज देयर एन एक्सपेक्टेशन दैट द पेरेंट्स आर हैविंग कि मेरे बेटे को विराट कोहली बनना है, या बच्चा सही में क्रिकेट खेलना चाहता है. ये Right. चीज भी है. Right. तो अब अगर बच्चा खेलना चाहता है तो उसको किट बैग खुद से उठाने दो ना, Yes. क्योंकि ग्राउंड में तो आप खेलोगे नहीं उसके लिए. Yes, this उसी को is खेलना very है. very very, मतलब ये बहुत ही एसेंस है मुझे लगता है. It builds discipline, I It's think. not about just the discipline, it is also about, so basically if you think, if you are traveling in a bus with a kit bag which is let's say 10 kilo weight, if you are carrying it on your shoulder, you are also gaining your strength. This is one of the most refreshing drink that you get to find in that of मैदान, और ये मैदान के हर एक ग्राउंड में विल फाइंड दिस. इसको हम लोग नींबू पानी बोलते हैं, बट इट कम्स विद दैट ऑफ, ये जलजीरा आता है, राइट. इट कम्स विद ब्लैक सॉल्ट, वाटर, ice, and that of lemon. So now you have a lot of energy drink. In our days, this was our energy drink. This is Arun Lal's camp. Obviously, আমি এখানে একটা সময় ছিলাম, তো দেবেশ স্যার এখানেই ছিলেন, দেবেশ চক্রবর্তী. হি ইজ বেসিক্যালি ফ্রম নাইহাটি, বাট দেন হি ইউজ টু কোচ আউট হিয়ার as well. প্রণব স্যার ইউজ টু কাম আউট হিয়ার. ফটিকদা was here. Gautam Som Junior sir was out here. So it had one of the best coaches at that point of time, right? It was one of those, if you say in our days, it was one of those
coaching camp from where a lot of cricketers has come out. So out here, Kolkata ময়দানে দুটো level of cricket হয়, second division, first division. মানে I'm not very sure in the last 10 years if there are changes that have happened. So in this case, what happens is the second division level is the lower level, then is that of the first division level. The best of the players who get selected for the state levels comes from the first division level. So the one who performs, obviously, it is how they get selected and everything. That's how it is. So, mane, there are people who scores thousands of runs out here, right? And তখনই Bengal squad selection वगैरह হয়. This is customs and that of police ground on either side. On the left you have got the police ground, on the right you have the customs ground. So custom ground has got multiple tent shed. Yeah, central excise, you have customs who share the tent. There are a couple of second division clubs as well, like Behala Friends and all. Previously, those areas that we see on the very edge, those used to be jungle when I used to play cricket. Now I see that there is a tent setup that has happened. So obviously, a lot of things have changed, and this is that of Mohun Bagan Club. If the way we walked through, right, is that of the East Bengal Club. So the three corners are captured by the top, you might say, the best football clubs of Calcutta, that is Mohammedan, East Bengal, and that of Mohun Bagan. And on the opposite, you have the Mecca of cricket, which is Eden Gardens, obviously. As I'm saying कि मैं हट चुका हूँ क्रिकेट से बहुत दूर. मुझे उस गली में तो जाना ही नहीं है. Why? What went wrong? क्या है वो? What is that? Why? See, as What I went said, wrong exactly? कि गलतियाँ किसी की नहीं थी. गलती किसी की होती भी नहीं है. मतलब हम लोग ये जो बोलते हैं ना, जब एक उंगली दिखा के बोलते हैं ना कि ये तुम्हारी गलती है, हम लोग भूल जाते 3 उंगली हमें भी फेस करती है और हमें बताती है कि तुम्हारी भी गलती है. तो आज अगर मैं किसी को गलत किया हुआ मानता है तो मैं खुद को मानता हूँ और किसी को नहीं. तो अगर इफ़ यू आर आस्किंग के क्या गलत हुआ था, मैं बोलूँगा मैंने क्या गलत किया था. आई थिंक ये बहुत सारे लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट के तुम खुद पे ध्यान दो कि तुम क्या गलत कर रहे हो. क्यों तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा काम जो तुम कर रहे हो सही नहीं हो रहा. आज कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, वो चाहे क्रिकेटर हो, चाहे फुटबॉलर हो, या कोई एथलीट हो, वाई इज़ इट नॉट हैपनिंग, वो फाइंड आउट करना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे पहले ये फाइंड आउट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वाई एम आई नॉट बीइंग एबल टू डू. और उसमें ना इट इज़ दैट व्हाट वी डू इज़, मेरी गलती ढूंढने के चक्कर में मैं देखता हूँ कि दूसरा वाला क्या सही कर रहा है, बट मैं अपना गलती, अब उसका जो सही हो रहा है शायद वो मेरा भी सही है, बट हम सोच रहे हैं कि यार ये वो तो शायद कुछ और कर रहा है जो मेरे से नहीं हो रहा है. तो यू हैव टू एट टाइम्स एक्सपेरिमेंट एज वेल एंड सी व्हाट इज़ वर्किंग आउट फॉर यू. नॉट एवरीथिंग कि हर चीज़ जो तुम कर रहे हो, अगर वैसा ही होता देन राहुल द्रविड़ और सहवाग दोनों एक साथ क्रिकेट नहीं खेलते, राइट. राहुल द्रविड़ का क्रिकेटिंग एथिक्स बहुत अलग है, सहवाग का क्रिकेटिंग एथिक्स बहुत अलग है. आज अगर मैं दोनों को रिप्लेस करके बोलूँ, राहुल द्रविड़ को बोलूँ कि तुम सहवाग जैसे बैट करते रहो, ही वुड नॉट बी एबल टू, बिकॉज दैट्स नॉट इज फोर्टे. सिमिलरली सहवाग को अगर मैं बोलूँ कि पूरा दिन तुम 400 बॉल खेल के 70 रन बनाओ, वो उससे नहीं हो पाएगा शायद. सो अगेन, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट योर पॉजिटिव्स आर, यू हैव टू वर्क ऑन दैट. एंड जो नेगेटिव्स है, बिकॉज आज क्रिकेट बहुत डेवलप हो चुका है. आज इफ़ यू आर प्लेइंग इन अब एनी सीनियर लेवल, स्टेट लेवल मैच, तुम्हारा सारा ग्राफिकल चीज़ें, एनालिटिकल सब निकल जाएगा. सो इट इज़ वेरी ईजी. तो अपने गलतियों को जितना तुम कम कर सको इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आई वुड ऑलवेज से कि दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट, स्पेसिफिकली क्रिकेट, इज़ अ वेरी फ्लैशी स्पोर्ट टुडे. तुम 2 मैच खेल लो, 3 मैच खेल लो, तुमने 2 रन बनाए, तुम्हारे एक बार न्यूज़पेपर पे पिक्चर छप गया, ठीक है, इंस्टाग्राम में निकल गया, तुम उसको पोस्ट करते रहो, 4-5 गुड लुकिंग वुमेन रीचेज आउट टू यू, यू स्टार्ट फ्लाइंग हाई इन द स्काई. यस दिस वुमेन पार्ट, इसके बारे में भी मैं बात करना चाहता था. सो हैव यू सीन प्लेयर्स जिनकी क्रिकेटिंग जर्नी, मैं मतलब आई बीइंग मतलब इवन आई हैव प्लेड क्रिकेट, यू नो दैट. तो आई थिंक डू यू हैव यू सीन क्रिकेटर जिनका करियर
गेटिंग इनटू गर्ल्स, गेटिंग इनटू वुमेन उनके वजह से बर्बाद हुआ है? See again, that is something very personal as a choice. बट आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी का नाम बताओ, बट हैव यू मैं सीन? नाम नहीं बताना, नाम तो दूर की बात है, इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस, राइट? अब ऐसे लोग हैं ऑब्वियसली, मैंने सुना है या कभी कभार देखा है अपने लाइफ में, दैट दे हैव एक्सेल्ड, राइट, बिकॉज दे हैड टू मेनी वुमेन्स इन देयर लाइफ, एंड देयर आर पीपल, बिकॉज उनका एक था कि कुछ भी आ जाए, मेरा जो फोकस है उससे मेरा नज़र नहीं हटेगा, बाकी जो चीज़ें हैं दोज आर पार्ट ऑफ लाइफ, एंड देन देयर आर पीपल जो अपना फोकस हटा के वहाँ पे फोकस ज़्यादा करने गए, एंड जो एक्चुअल फोकस है वो हट गया, राइट? बट एंड ऑफ द डे आई गेस if you are thinking you want to establish something in your life, you want to focus on something in your life, you want to achieve something in your life, you should not get out of, or you should not think of anything other than that. Yes, the other things obviously would be a part of life, it is something that you cannot ignore, right? वो एक 24-25 साल के बच्चे का obviously वो feelings रहेंगे, right? And then when you get some fame, right, it's obviously you feel like you get more attention, Right. but you will see the best of the class, or the one who separates themselves are the one who are very very focused at what they do. This is more of something that they meet people, they go out whatsoever, so but that is not something which rules their life. It is the dedication towards work or towards the game which rules their life. तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ठीक है डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगी, डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, बिकॉज इफ़ यू वांट टू अचीव, इफ़ यू वांट टू डेडिकेट योरसेल्फ, यू हैव टू कम आउट ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस. सो गिवन, सो सिंस अभी आप कॉर्पोरेट में हो एंड यू नो आपका लाइफ हैज़ कम्प्लीटली चेंज नाउ, गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अगर आपको एज अ प्लेयर, एज अ कोच, एनी हाउ अगर वापस क्रिकेट से जुड़ने का मौका मिला, वुड यू अगेन चूज टू बी अ पार्ट ऑफ इट? बीइंग अ कोच maybe yes, but being a cricketer कैसे possible है? 37-38 में जाके you don't play cricket, you are more of an advisor. If you know the game some bit, if you learn the game some bit, that is what you do. If not, then you are just a mere spectator, right? And the kind of game that we learned, the kind of trainings that we had, the cricket has evolved way more in the last 10-15 years, right? So as they have evolved in such a way, so it is difficult. Like today, if I obviously if I know the basics of it, but if I have to do a data analytics, right, I have to do the trainings of it. So there is it is again the same thing, that I have to put all my dedication out here so that I know the craft well to teach the craft well. Right, it is very important, because today if I am not playing the cricket, so I would be obviously helping somebody learn about the cricket. So for that I should know the craft well, right? I should know the new basics, the new rules, right, that has come up. So once I can have a look into that, and I can settle myself into that, then it will be possible for me to suggest somebody. Before that, yes, maybe the basic, if I see somebody batting and I see some wrong, maybe I can give or tell that the one that I have learned, what my logic say can be good, can help him. But again, that's an experiment, because as I am not a regular part of cricket anymore, so it is obvious that I would also, तो वही होता है ना कि तलवार को जब तक तुम छानते रहते हो, उसका धार रहता है, उसको फेंक के रख दो कहीं पे, उसमें जंग पड़ जाती है. तो अभी फ़िलहाल मेरे में जंग आ चुकी है, तो अगर आज जंग आ चुकी है तो हाउ विल आई से कि ऑब्वियसली क्रिकेटर तो नहीं, बट मे बी अ कोच, वो शायद मैं कर सकता हूँ. ग्रेट. सो देयर आर लॉट ऑफ यंग एथलीट्स, आई एम श्योर ये वीडियो देख रहे होंगे. सो व्हाट वुड बी दैट वन एडवाइस, आप क्या एक एडवाइस देना चाहोगे किसी एक यंग एथलीट को, जो वो मिस्टेक्स जो आपने करी या फिर आपके आसपास के लोगों ने करी, वो क्या ऐसी मिस्टेक है, इफ़ यू कैन डिटेल में उन्हें बता पाओ कि वो उन्हें नहीं करनी चाहिए? बहुत सिंपल है, मतलब ये शायद हमारे बहुत ऐसे आइकॉन्स हैं जो हर दिन हर रात अपने वीडियोस में बोलते हैं कि
टैलेंट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, टैलेंट होना ज़रूरी है। अगर स्पेसिफिकली क्रिकेट खेल रहे हो तो कोई 100 मार रहा है तो तुम 200 मारो, वो 200 मार रहा है तो तुम 300 मारो, और वो हर दिन, हर दोपहर, हर मैच में करना है। हाउ, अगर ये पता होता सबको कि 200 150 300 मारना है तो सब मार रहे होते, हाउ डू दे डू दिस? what makes that difference? What's that? For a batsman, I don't know what the new cricket rule says, but when we started learning cricket, our coaches used to say then never give your wicket. तो अगर बैट करने जा रहे हो, जब तक तुम सेटल नहीं हो जाते हो, राइट, कोई रैश शॉट मत मारो। हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि वी में खेलो, तो हाँ, अच्छा बॉल लेके चला गया, आउट हो गए, अलग बात है, राइट, बट उसके लिए भी प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, राइट, दैट इज़ हाउ इट इज़ गोना बी। एंड और कैसे होता है उसका एक ही जवाब हो सकता है, उसका जवाब मैं क्या दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कैसे करना है ये आज अगर कोई विराट को लेके जाकर जैसा पूछता है कि आपने कैसे किया, वो एक ही चीज़ बताएगा कि मैं सुबह 5:30 बजे ग्राउंड पे जाता था, मैं भागता था, मैं अपना बेसिक्स ठीक करता था, मैं मैच में जाता था, रन बनाता था, कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैं वापस आता था, मैं अगले दिन फिर सुबह मैदान में जाता था प्रैक्टिस करने, और मैं शोशाबाजी में नहीं था। दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग इज़, अब अगर तुम गलती कर रहे हो, ऑब्वियसली देयर आर कोचेस जो तुमको बता सकते हैं क्या गलती हो रही है, कैसे सुधारना है, तो उस पर काम करो। और हारोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, राइट। तुम अगर 40 कर रहे हो तो तुम सेट हो, तुम 15-20 में आउट हो जा रहे हो तो ठीक है, तुम तब तक सेट नहीं हुए हो। तो 40 अगर किया तो उसको 100 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, 100 हुआ तो 200 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो ये हमेशा होना चाहिए। बट एंड ऑफ द डे पहला चीज़ तो होना चाहिए डेडिकेशन, कि मैं जब मैदान में जा रहा हूँ ये सोच लूँ कि मैं ही लास्ट विकेट हूँ, मेरे पास कोई बैट्समैन है नहीं, मैं आउट हो गया तो टीम हार जाएगी। क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिंग इन टू कॉर्पोरेट और बिंग इन टू क्रिकेट? आपके लिए क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट और क्या ज़्यादा ईजी है? सी, क्रिकेट इज़ अ वेरी सेपरेट थिंग, कॉर्पोरेट इज़ अ वेरी सेपरेट थिंग। क्रिकेट मैं जब छोटा था, जब मैं 5-6 साल का था, तब से खेल रहा या खेलता था, तो ऑब्वियसली वो फ्रेश ब्रेन हुआ करता था एक बच्चे का, राइट, तो उसको सीखना आसान था। जब तुम कॉर्पोरेट मजदूर बनते हो या कॉर्पोरेट में जब जाते हो, तुमको बहुत कुछ सीखना होता है जो तुम्हारा एक्सपीरियंस के थ्रू होता है। तो अब दोनों के जगह पे हार्ड है, दोनों के जगह पे इजी है। कॉर्पोरेट में भी आज जॉब मिलने के लिए यू हैव टू फाइट, इफ़ यू हैव टू ग्रो यू हैव टू परफॉर्म। क्रिकेट में भी सेम है, अगर तुमको टीम में घुसना है तो अगर देखोगे रेलिवेंस दोनों में सेम है, इट्स ऑलमोस्ट सेम, राइट, बी इट कॉर्पोरेट और बी इट दैट ऑफ क्रिकेट। मतलब आज कितने लोग जॉब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू वांट टू गेट अ जॉब इन गूगल, देयर विल बी थाउजेंड पीपल हु वुड बी गिविंग देयर इंटरव्यू, राइट। सिमिलरली तुम एक टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो या तुम एक क्लब डिवीज़न खेलने जा रहे हो, तो वहाँ पे भी 1000 लड़के खेल रहे हैं, 2000 लड़के खेल रहे हैं। अब इफ़ यू आर नॉट द बेस्ट, व्हाई वुड गूगल सिलेक्ट यू? Similarly, if you are not performing well out here, why would you get a call from that of the state team? So it is both same. ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे शायद हम लोगों ने टाइम ज़्यादा बिताया। आज नौकरी करते हुए मुझे 16-17 साल हो गए, तो जिसके वजह से मेरे लिए ये जितना आसान है, मैंने 15-16 साल 17 साल क्रिकेट भी खेला है, तो वो भी मेरे लिए वही हो गया। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो यार बहुत सिमिलर, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। एक लास्ट चीज़, एक लाइफ कोट जो आप फॉलो किए हो और थ्रू आउट दिस जर्नी आपको फ्रॉम द पेन और वॉट एवर प्रॉब्लम्स दैट यू हैव गॉन थ्रू, आपके जो भी चीज़ें चली हैं, राइट, वी ऑल हैव डिफरेंट फाइट्स इन आवर लाइफ, तो वो फेज़ के दौरान एक लाइफ कोट जो आपको हमेशा, एक वन लाइनर लाइफ कोट जो हमेशा आपको मतलब कैरी फॉरवर्ड करती थी? Stop regretting about your past. Keep learning every day, every single day. Everybody can teach you something. Some can teach you good, some can teach you bad. But
use your logic, right? And do not be worried about failures. Let the failures come, then only you will learn. And हम लोग एक चीज़ बोलते हैं ना, that we all want to earn, right? The funny part is, before earning, if you put a L, it becomes learning. So as soon you start learning and you have well learned, the L will easily get removed and the earning will start. Yes, beautiful, very beautiful, very beautiful. So earning needs learning. Beautiful. Thank you so much, Devanjan da. Thank you. It was really amazing talking with you. Same here. And इतना ज़्यादा आपने इंसाइट शेयर किया. आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें रह गई डिस्कस करना, जैसे बंगाल क्रिकेट इंफ्रा, बैंगलोर बंगाल के क्रिकेट के रूल्स, बंगाल क्रिकेट कैसे खेलना है किसी को, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी रहेगी. बट आई एम श्योर ये अगले पॉडकास्ट में हम ज़रूर करेंगे आपके साथ. ये शायद ये करने के लिए आई वुड से मेरे से भी बेहतर कुछ लोग हैं जो बंगाल क्रिकेट के साथ आज जुड़े हुए हैं. इट्स बेटर उनके साथ करना, जो एकदम रूट्स ऑफ बंगाल क्रिकेट आज क्या है वो बता सकते हैं. बिकॉज आई एम एन आउटसाइडर ऑफ बंगाल क्रिकेट टुडे, राइट? एंड वही होता है ना, जब तक तुम दिखते हो तब तक तुम्हें याद रखते हैं लोग. जब तक तुम दिखना बंद हो जाते हो, पुराने लोग तुम्हें याद रखेंगे. नाम कहीं सुना होगा, यही बोलते हैं. So thank you so much, Devanjan da. Amazing talking with you. Thank Wishing you all the best for whatever you're doing. Wish you all the best for your podcast. Thank you. Hopefully बहुत जल्दी तुम्हारे भी 10-15 बिलियन Oh सब्सक्राइबर my बन God. जाए, right? Definitely. And you become one of the best content creator of India. Thank you so much, Devanjan. Done. Great having you. So this was my talk with Devanjan da, one of the finest cricketers that I have met in my life and that I have played with. आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी. आई होप इसमें जो हमने डिस्कस करी वो आपको इंसाइटफुल लगे होंगे और हेल्पफुल लगे होंगे. हम ऐसे और बहुत सारे क्रिकेटर्स को अपने चैनल पे इनवाइट करेंगे और उनके क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में जानेंगे, इररिस्पेक्टिव वो सक्सेसफुल आज क्रिकेटर है या नहीं है. इसके साथ साथ इस चैनल पे आपको बहुत सारे रिलेटेबल क्रिकेटिंग शॉट्स मिल जाएंगे, क्रिकेट रिलेटेड फनी वीडियोस मिल जाएंगे जिसको आप काफ़ी एंजॉय करने वाले हो. तो अगर आप कोई ऐसा इंसान हो जो अपने क्रिकेट को एंजॉय करता है, अपने क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करता है, क्रिकेट में खुद को ग्रो कराना चाहता है, ये चैनल आपके लिए एक परफेक्ट हॉटस्पॉट है. तो इंश्योर करिएगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं. और आपको वीडियो हेल्पफुल या फिर इंसाइटफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है. बाकी आई एम श्योर अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप डिसअपॉइंट नहीं होगे. मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, एंजॉय क्रिकेट.